We are discussing the main economic problem. Main economic problem. So every economy has to face this problem in the economy, and all the economies of the world has to face this problem. That's why it is called main economic problem of the economy. And what is this problem? This problem is actually the problem of scarcity and choice. This is the main economic problem, scarcity and choice. Scarcity is what? Scarcity is of resources, because resources are limited for every country of the world. No country of the world has unlimited resources. Every country has limited resources. But on the other side, the wants or needs which are satisfied from the resources are unlimited. There is no end of wants. So this is the main problem. Main problem is scarcity and choice, and this arises just because of these reasons or causes of the economic problem. First is needs or wants are unlimited, and we can explain this point with the help of any example related to our life, that if we satisfy our one need, then there are so many needs or wants in our life. For example, if we have a bicycle, then we think of scooty. There should be scooty for us. It will make our transportation, or we can say moving from one place to another, it will make it easy. But when we'll be having scooty, then we will think of car. And when we'll be having car, then luxury car. So there is no end of such things. One car, two cars, then more cars. And there are so many people who are having 3 cars, 4 cars, 5 cars. Just like you can think of the people related to the media, related to sports industry. So they are having 10 cars, 20 cars. So there is no actually need. These are the wants. So Lionel Robbins says that these wants are unlimited. All the needs or wants of an economy, or the people of an economy, cannot be satisfied with the limited resources. Why? Because the second point is that the resources which are used to satisfy these needs are actually limited or scarce. Scarce means scarcity. This scarcity means दुर्लभता हिंदी में कहते हैं, यानी anything which is available in limited quantity. Its demand is more than its supply. Then it is called scarce or limited. So all the resources, whether these resources are man-made resources, just like machines, cars, refrigerator, AC, anything what we purchase from the market and which is produced by the factories. So these are the man-made resources. And on the other side, the natural resources, which are the primary requirement for the production of other goods, just like water, wood, all the metals, petroleum, all these petroleum products, all these things are provided by the nature, but in limited quantity, not in unlimited quantity. That's why all these things have their market, because demand is more than supply. So anything which has more demand than its supply, जिसकी भी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, उसका मार्केट अपने आप बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, कोई भी नेचुरल थिंग्स है,
अगर आप देखें तो वो जहाँ से उनका रिसोर्स है वहाँ पर दीज आर अवेलेबल टोटली फ्री. फॉर एग्जाम्पल, if we are actually getting fishes from the ocean, so we do not have to pay anything for that. But when these fishes are caught by the fishermen, then they brought to the market, then they charge price for the fishes. जब वो उसको ले आए मार्केट तक तो उसके लिए चार्ज करते हैं, क्योंकि मार्केट में जो फिशेज हैं वो लिमिटेड हैं. हाँ, ओशन में अनलिमिटेड हो सकती है, वहाँ बहुत है, वहाँ कोई एंड नहीं है, आप निकालते रहिए, बहुत है आपकी नीड से, यानी कि जो आप वहाँ निकाल रहे हैं और जितना वहाँ पर अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है अवेलेबिलिटी, इसलिए वहाँ आपको पे नहीं करना, लेकिन मार्केट में आपको पे करना पड़ता है. तो वहाँ पर एक नॉन इकोनॉमिक गुड होती है, बट व्हेन इट कम्स टू द मार्केट इट बिकम्स इकोनॉमिक गुड. तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं हमारे, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमें चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए नीड्स को, या हमारे मैन मेड रिसोर्सेज, इंसान ने जिनको बनाया, वो दोनों ही तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड. लेकिन इनका एक और इंपॉर्टेंट जो फीचर हमने रॉबिन्स की डेफिनेशन में पढ़ा, वो क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस. ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. और ये हमने भी डिस्कस किया था कि ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज आर पॉसिबल. सो वी कैन पुट टू डिफरेंट यूजेस ऑफ दीज रिसोर्सेज. जैसे हमने अभी लैंड का एग्जांपल दिया कि उसको, if we have piece of land, we can use it for agriculture, for residence, for factory. On the same way, अगर हम बात करें, you are all the students of class 11. So you are the students who are actually at the point where you have to think what should we do. Should we take science stream? Should we take commerce stream? Should we take humanities? So humanities, commerce and science cannot be studied simultaneously. So you will have to choose which side, which stream will be best for you, because you have the limited time. ऐसा नहीं है कि हमने अभी 2 years की 11th 12th और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया, बीएससी तक चलेगा, वापस हम कहें कि नहीं ठीक है टाइम हमारे पास, हम दोबारा कॉमर्स से करेंगे और फिर सारी 5 years की पढ़ाई कॉमर्स से करेंगे, फिर हमें लगता है कि नहीं हम ह्यूमैनिटीज से भी करें. तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है. तो हमें ये 5 years 6 years 7 years अपने करियर को बनाने के लिए है. तो ये हमारे पास लिमिटेड टाइम. तो टाइम भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. तो वो टाइम के अंदर हम क्या बेस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं. तो इसलिए हमें चूज करना पड़ता है कि कॉमर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगी या साइंस अच्छी रहेगी या ह्यूमैनिटीज अच्छी रहेगी. उसी तरह से जो रिसोर्सेज हमारे पास है, अब ये टाइम जो हमारा है 6-7 years का, चाहे तो हम साइंस पढ़ने में भी लगा सकते हैं, कॉमर्स पढ़ने में भी लगा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज पढ़ने में भी लगा सकते हैं, पर तीनों को एक साथ नहीं. ऑन द सेम वे कि कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो उसके पास लैंड है, चाहे वो उसके पास मैन पावर जिसको हम लेबर कहते हैं, वो लेबर कहीं भी लगा सकते हैं. आपने अगर जो आपके पास लेबर है, उस लेबर को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं. उस लेबर को आप फार्म्स पर लगा सकते हैं, फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं. उस लेबर लेबर एक इंपॉर्टेंट अपने आप में रिसोर्स है. अब इसके अलग अलग यूजेस आप कर सकते हैं. आप इसको फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप लेबर को वहां लगाइए, और उस फार्मिंग के भी अलग अलग लेवल या अलग अलग उसके ऑप्शंस हो सकते हैं. आप उसमें वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, आप उसमें कुछ और कर सकते हैं फार्मिंग में. तो फार्मिंग के भी बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं. लेकिन फार्मिंग अपने आप में मान लीजिए हमने एक ऑप्शन दिया, तो ये लेबर, दिस लेबर कैन बी पुट टू द फार्मिंग, यहाँ लगा सकते हैं उसको. दूसरा, इसी तरह से हम क्या उसको फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं. आप जानते हैं कि फैक्ट्री में मशीन चलानी है या और सब काम है, उस सबके लिए लेबर की आपको रिक्वायरमेंट है. तो लेबर को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए. इसी लेबर को हम कंस्ट्रक्शन के वर्क में भी लगा सकते हैं. आप जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें भी लेबर की जरूरत पड़ती है, तो आप वहां पर भी उसको यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आप कहीं पर और पर भी यूज कर सकते हैं उसको. जैसे और कहाँ लगा सकते हैं लेबर को, बताइए. जैसे हमने ऑप्शन दिए, फार्मिंग में लेबर चाहिए आपको, फैक्ट्री में भी लेबर चाहिए,
आपको कंस्ट्रक्शन के काम में भी लेबर चाहिए। आप सोचिए और कहाँ कहाँ लेबर काम करते देखते हैं आप अपनी लाइफ में, कहाँ कहाँ पर देखते हैं कि लेबर काम कर रही है? लगता है कुछ और कहीं देखते हैं आप लेबर को काम करते हुए? हाँ, शॉपिंग मॉल्स में। वेरी गुड। तो ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग है, सेल एंड परचेज का जो काम है पूरा, तो वहां पर भी लेबर को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कोई? और कहाँ लेबर को यूज करते हैं? बहुत सारी जगह। आप देखिए ना, बिना लेबर के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। आप रोड बनाने से लेकर के और डैम बनाने तक, आप रेलवे से लेकर के और जितने भी आपके काम हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, चाहे वो आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड अदर सेक्टर्स हैं, वहाँ सारा ये सारी की सारी चीजें कहाँ जाती हैं? यहाँ पर इनको एक नाम दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भी आप लेबर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंट्री का डेवलपमेंट करना है, इसलिए आपको रोड्स ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना है, आपको रेलवे डेवलप करना है, आपको कम्युनिकेशन सेक्टर डेवलप करना है, आपको बैंकिंग सेक्टर डेवलप करना है, आपको एनर्जी सेक्टर डेवलप करना है। ऑल दीज सेक्टर्स मस्ट बी डेवलप्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सो लेबर इज रिक्वायर्ड इन ऑल दीज सेक्टर्स। So these are the different uses of this labor. But the labor which is actually working in construction sector cannot be used simultaneously for the infrastructure development. जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको यहाँ नहीं लगा सकते हैं। हाँ, आप यहाँ से हटाकर तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चाहें कि वो जो यहाँ काम कर रहे हैं जिस समय में, उसी समय में यहाँ कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसलिए आपको ये चूज करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर तो लिमिटेड है आपके पास कंट्री के, तो हमें चूज करना पड़ेगा कि वो लेबर कहाँ यूज होनी चाहिए। फार्मिंग में होनी चाहिए, या फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करने में चाहिए, या कंस्ट्रक्शन आपको हाउसेस बनाने हैं, फ्लैट्स बनाने हैं लोगों के रेजिडेंस के लिए, उसमें यूज होनी है, या फिर वो रोड्स और डैम्स और ये सब बनाने में यूज होनी है। कहाँ उसको हम लगाएं? बिकॉज लेबर इज लिमिटेड, दैट्स व्हाई वी विल हैव टू थिंक द बेस्ट यूज ऑफ दिस लेबर। तो यही हमारे सामने प्रॉब्लम है। तो ये तीनों जो रीजन हमने अभी लिखे हैं, फर्स्ट रीजन हमने लिखा क्या, बताइए? अभी हमने बोला था फर्स्ट रीजन, नीड्स और वांट्स आर अनलिमिटेड, और हमने कहा कि ये कोई एंड नहीं है इनका। एग्जांपल भी दिया हमने, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक उसी तरह से दूसरा रीजन आया क्या, लिमिटेड और स्केर्स रिसोर्सेज। यस, तो रिसोर्सेज आर स्केर्स, वो हमने बताया कि मैन मेड रिसोर्सेज हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एवरीथिंग वी हैव इन लिमिटेड पॉइंट, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, सब कुछ लिमिटेड है। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है हमारे पास। और थर्ड पॉइंट हमारा आया कि अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज आर पॉसिबल, और ये अल्टरनेटिव यूजेस हमने समझाया। जैसे लेबर का एक एग्जांपल लेकर बताया, और इससे पहले हमने आपको लैंड का एग्जांपल देकर बताया कि लैंड को कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्री रीजंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द problem of scarcity and choice, and this problem is the main economic problem. So do you have any doubt? कोई भी डाउट है तो पूछिए यहाँ तक। Clear? Everything is clear to all of you? Okay. So now the next question we will write, and the next question is also related to this point. Next question is, what are central problems? और कई बार इसके आगे इकोनॉमी भी लिख देते हैं। What are the central problems of an economy? इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी? अब इनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स का रिलेशन भी हर इकोनॉमी की है, हर इकोनॉमी से दुनिया की। Every economy has to face these central problems. Every economy has to think of these problems. That's why these are called central problems. इनके ऊपर हर इकोनॉमी को डिसीजन लेना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा, हर इकोनॉमी को दुनिया में। इसलिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। और ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम है जो आपके सिलेबस में है, बाकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो अब एक प्रॉब्लम है उसी को मेनली डिस्कस किया जाता है यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड पर, और वो जो सेंट्रल प्रॉब्लम है
वो क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी is what? This is the central problem, and this is called distribution or allocation of resources. How do we say that this is the problem? This is the problem, allocation of resources. Why? Because we have already studied that the resources are limited or scarce. That's why we have to think the best use of these resources. Where should these resources be used? कहाँ इनको यूज करें, ये सोचना सबसे बड़ी समस्या है। और ये जो प्रॉब्लम है इसको हम फर्दर इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हम आगे 3 पार्ट्स में और क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। और वो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, पहली प्रॉब्लम है वो क्या है? What to produce? ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, ये जो कौन सी गुड्स हैं जिस पे हम अपने रिसोर्सेज लगाएं। दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट दिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, which type of goods should be produced in the economy, because these resources can be used for the production of different type of goods, different type of commodities. For example बात करते हैं, जैसे कि हम इन resources को कहाँ बनाने में लगा सकते हैं? हम इनसे consumer goods का production कर सकते हैं। And consumer goods are necessary for the economy. What are consumer goods? तो कंज्यूमर किसको कहते हैं, आप में से कोई भी बताएं। सबसे पहले कंज्यूमर वर्ड तो आपने सुना ही होगा, 10th में चैप्टर भी है इसके ऊपर। इकोनॉमिक्स में था, कंज्यूमर अवेयरनेस का एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, तो अभी लास्ट ईयर वो शायद सिलेबस से हटा दिया था। तो कंज्यूमर राइट्स की हम लोग बात करते हैं, एसएसटी में हम 10th तक पढ़ते हैं। तो हु इज कंज्यूमर? एनीबडी कैन स्पीक, यस। एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, प्रवनीत। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है परचेज करने का? हम व्हाई डू वी परचेज दीज गुड्स? गुड, यस। नाउ Vanshika or Sarthak, do you want to add anything in this definition that she is saying that the person who purchases goods and services to satisfy his or her needs or wants, he or she is consumer. Is it right? Yes, this is right. That the person who actually purchases the goods for satisfying his human needs or wants, so he will be called consumer. Then the goods which are used to satisfy the human needs or wants are called consumer goods. So these goods are necessary. These goods are required for every economy, because the every economy wants to satisfy the needs of maximum people of his economy. तो जो इकोनॉमी के नीड है, कोई भी गवर्नमेंट है तो वो ये चाहेगी कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड सेटिस्फाई हो। कोई भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पर भी ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स कैसे सेटिस्फाई करें। तो वो उसके लिए कंज्यूमर गुड्स ज़रूरी हैं। ये सब जितनी कंज्यूमर गुड्स यानी जितना भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, ईटेबल्स हैं, जितना भी हमारे वेयरिंग हैं, वो सब जितना भी गारमेंट्स है, जितना आपका मेडिसिन हैं, ये सब हमारी कंज्यूमर गुड्स हैं। जितने ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, और जितना हम ड्यूरेबल गुड्स यूज़ करते हैं अपने घर में, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, एसी है, ये सब चीज़ें हमारी कंज्यूमर गुड्स में आती हैं, क्योंकि ये सब हमें सेटिस्फेक्शन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। दूसरी तरह की गुड्स और हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो वो हो सकती हैं कैपिटल गुड्स। What are capital goods? Yes. Do you have any idea about capital goods? What are the capital goods? Yes. Have you heard about capital goods in class 10th or 9th in economics? कहीं भी आपने सुना हो? हाँ. Yes, Pravneet. Okay. Okay.
So capital goods are those goods which are required to produce other goods. These goods are not purchased by the consumers. These goods are purchased by the producers. Why? To produce other goods. For example, this t-shirt is the consumer good. Why? Because we are wearing this and it is satisfying our needs or want. So that's why this is consumer good. But this t-shirt is produced with the help of the machines. With the help of the machines, we have converted the cotton or the thread into this t-shirt. So the machines are equally important, because in the absence of the capital goods, the consumer goods cannot be produced. So if we want more consumer goods, it's okay. But in the absence of capital goods, these consumer goods cannot be produced. So both goods are important for the economy. So that's why we have this question, that which goods are more important. Means, in other words, where we should use these resources, limited resources, for the production of consumer goods or for the production of capital goods. This is one example. And we can classify these goods into different categories. This is one of the category, consumer and capital. On the same way, we can durable, semi-durable, perishable, and other type of goods, just like peacetime goods, wartime goods. Wartime में आपको क्या चाहिए? आपको guns चाहिए, bombs चाहिए. Peacetime में आपको क्या चाहिए? Luxury goods चाहिए, comfortable goods चाहिए, क्योंकि कोई आपकी लड़ाई तो हो नहीं रही है, इसलिए आप enjoy करना चाहते हैं. तो country में लोगों का जो living standard है, that should be improved, and that can be improved with the production of consumer goods. So दोनों तरह की goods जो है वो जरूरी है. तो किस goods के production में अपने resources को लगाएं, और अगर हम तय करते हैं दोनों जरूरी हैं, तो कंज्यूमर गुड्स कितनी, हाउ मच, तो वी हैव टू डिसाइड व्हाट द क्वांटिटी ऑफ दीज गुड्स, कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज बनानी है. कंज्यूमर बनानी है, ठीक है, ओके, बट कितनी बनानी है. ऐसी कैपिटल गुड्स बनानी है, तो उनकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, वंशिका क्लियर है? वंशिका, am I audible? So, okay. Second problem is how to produce. This is the problem of choice of technique, choice of technology, because there are different type of technology which can be used in the production process. Broadly, we can classify the technique or technology into two parts. One is labor intensive technique, and second is capital intensive technique. So these are the two technologies. So labor intensive technique is that technique in which we use more labor in comparison to machines, because the more capital is used to purchase used machines. आपको अगर मशीन खरीदनी है तो बहुत कैपिटल चाहिए, तो या तो आप मशीन का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो होगी कैपिटल इंटेंसिव. यदि आप मशीन्स को कम यूज़ कर रहे हैं और लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन में, अपनी फैक्ट्री में लेबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो होगी आपकी लेबर इंटेंसिव. जैसे एक फार्म का एग्जांपल आप समझिए. मान लीजिए कि कोई भी, जैसे बात कर रहे हैं फार्मिंग कर रहे हैं कहीं पर, और फार्मिंग में एक ऑप्शन तो ये कि हम ज़्यादा लेबर लगाएं वहाँ पर और लेबर से ही ज़्यादा काम लें, और दूसरा ऑप्शन ये है वहाँ पर कि हम ट्रैक्टर्स वगैरह, थ्रेशर मशीन वगैरह, ये सब चीज़ें हम यूज़ करें, तो हम मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पर. ये दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं, तो हम दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों टेक्निक के अपने बेनिफिट और अपने लॉसेस हैं, यानी मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों के हैं. कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिसको हम ये कहें कि इसके केवल मेरिट्स है, डिमेरिट कोई नहीं. अगर ऐसा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम वही चुन लेते जिसके मेरिट्स थे. लेकिन अब मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं क्या? मान लीजिए जैसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक आप यूज़ करते हैं,
तो इससे क्या होगा, मेरिट क्या है आपका, मेरिट ये कि आपकी जो प्रिलिमिनरी कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट है, वो बहुत कम आएगी। क्योंकि आपको लेबर तो आप मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं काम एक लेबर से भी शुरू कर सकते हैं, 2 लेबर से कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी जरूरत बढ़ेगी आप लेबर बढ़ाते चले जाएंगे और लेबर को पर डे बहुत बड़ा अमाउंट देना नहीं पड़ता है। तो ये इसका बेनिफिट है। एक और बेनिफिट क्या है, इट क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, सो इट इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी एंड एवरी इकोनॉमी वांट्स टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। हर इकोनॉमी चाहती है, हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं, स्पेशली द लेबर रिसोर्सेज, वो फुल्ली एंगेज्ड रहें, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे। और अभी भी हम देख रहे हैं कि पूरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू, बिग चैलेंज विच इज बीइंग फेस्ड बाय द गवर्नमेंट, कि भाई कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करें। तो ये एक इसका बेनिफिट है, इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। लेकिन इसके लॉस भी, और लॉस क्या है कि इससे जो प्रोडक्शन होता है वो टाइम टेकिंग होता है, लंबा समय लगता है प्रोडक्शन में, टाइम ज़्यादा लगता है प्रोडक्शन में, क्योंकि आदमी धीरे धीरे काम करेगा तो उसमें समय लगता है प्रोडक्शन में। दूसरा इसका एक और लॉस है कि यहाँ पर जो आप प्रोडक्शन करते हैं उसमें लॉन्ग रन में आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आती है एक इकाई को बनाने की लागत, वो ज़्यादा आती है, क्योंकि आपका समय ज़्यादा लगता है, लेबर को आपको लॉन्ग रन तक ज़्यादा उसी तरह से पे करते रहना पड़ता है, इसीलिए आपकी जो कॉस्ट है लॉन्ग रन में पर यूनिट कॉस्ट वो ज़्यादा आती है प्रति इकाई का। तो इसका लॉस भी है। और वो जो उसके मेरिट्स हैं, इसके डीमेरिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे यहाँ मेरिट क्या था कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट करती है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मशीन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली लेबर की कम जरूरत पड़ रही है, तो इट विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये इसका एक डिमेरिट हो गया। दूसरा, यहाँ पर इसकी प्रीलिम कॉस्ट जो थी वो कम थी, इनिशियल कॉस्ट। यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट ही ज़्यादा आती है क्योंकि मशीनें महंगी आती हैं, लैक्स और करोड़ रुपीज़ में भी आती हैं, तो वो लैक्स ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इजीली नहीं हो सकती, इसलिए ये इसका एक लॉस है। लेकिन उसके जो वहाँ पर लॉसेस थे उसके बेनिफिट है कि इसमें लॉन्ग रन में जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो कम आती है। और यहाँ पर जो जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो प्रोडक्शन का जो टाइम है प्रोसेस में वो टाइम कम लगता है, इसलिए कम समय में हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दोनों दो इसके जो बेनिफिट है वो इसके लॉस है, जो इसके लॉस है वो इसके बेनिफिट है। इसीलिए हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें प्रोडक्शन में या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें, और इन दोनों में चॉइस करना ही क्या है, चॉइस ऑफ टेक्निक। और यही प्रॉब्लम क्या है अपने आप में, व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद हाउ टू प्रोड्यूस। सो हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, एंड टेक्निक आर दीज टू, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल। यस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और डू यू हैव एनी डाउट? बताएं। क्लियर? वंशिका, कर्मी, हाँ पूछिए। हाँ, लेकिन बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज तो चाहिए होंगे ना। मान लीजिए आपने लेबर को यूज किया मशीन बनाने के लिए, तो लेबर आपकी लगी हुई है मशीन बनाने में। अब वो लेबर कंज्यूमर गुड्स बनाने में तो यूज नहीं हो सकती उसी समय में, तो आप मशीन तो बनाते चले जाएंगे, लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए लेबर चाहिए थी वो तो आपके पास है नहीं। इसलिए आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है या कंज्यूमर। अब आप कहेंगे दोनों जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है दोनों, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। और यहाँ हमने बात की थी इसलिए व्हाट टू प्रोड्यूस में, हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू डिसाइड द क्वांटिटीज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कि दोनों की कितनी कितनी बनाए, उसी से तय होगा कि कितने रिसोर्सेज को मशीन बनाने में लगाना है और कितने रिसोर्सेज को हमें फॉर एग्जांपल शर्ट्स बनाने में लगाना है। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ओके, so now the last problem of this allocation of resources, and that is for whom to produce. This problem is also classified into two parts, and the one is, ये भी अपने आप में एलोकेशन की वही प्रॉब्लम है जो अलग ढंग से हमारे सामने आती है। और यहाँ पर जो है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसके लिए फिर से हमें ये तय करना है कि वो रिसोर्सेज को हमें लगाना कहाँ है। अब यहाँ पर किस ढंग से पढ़ेंगे, एक है यहाँ पर
प्रॉब्लम इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस किस चीज की प्रॉब्लम है? डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक प्रॉब्लम किसकी? इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन की, अभी बात करेंगे ये क्या है अपने आप में। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। हम इन दोनों की एक एक करके बात करेंगे कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम अपने आप में क्या है और इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम अपने आप में क्या है। पहले बात करते हैं हम इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन। और इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये देखिए कि जो इकोनॉमी में जो भी पीपल हैं उनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं टू पार्ट्स में। और वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हम उनके इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग, उनकी इकोनॉमिक नीड के अकॉर्डिंग। और अगर हम इकोनॉमिक लेवल पर उनको क्लासिफाई करें तो वो क्या हो सकते हैं? वो रिच हो सकते हैं और पुअर हो सकते हैं। जो रिच और पुअर का क्लासिफिकेशन है उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं जो रिच पीपल हैं दे एक्चुअली डिमांड फॉर लग्जरीज और गुड्स ऑफ कंफर्ट, यानी आराम की चीजें उन्हें चाहिए, विलासिता की चीजें चाहिए, गुड्स ऑफ कंफर्ट उन्हें चाहिए, उन्हें कार चाहिए, उन्हें एसी चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए। दूसरी तरफ द पीपल हु आर नॉट हैविंग सफिशिएंट मनी, sufficient economic resources, they first actually want to satisfy their basic needs. And basic needs are what? You know all very well. Basic needs are, yes, food. सबसे पहली बेसिक नीड जो है इंसान की क्या है? वो फूड है। तो उनको फूड सबसे पहले चाहिए। उसके बाद अगर कुछ चाहिए, शेल्टर चाहिए, हाउस रहने के लिए घर चाहिए। उसके बाद उनको क्लोथिंग और कपड़े ये सब चाहिए। तो ये सारी उनकी बेसिक नीड। आजकल तो खैर उसके अंदर दो बेसिक नीड और ऐड हो गई हैं यूएन के कहने के बाद, और वो दो बेसिक नीड है एजुकेशन एंड हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो एजुकेशन और हेल्थ भी उसके अंदर बेसिक नीड में इंक्लूड हो गए हैं। तो हम सबसे पहले बात करें तो ये गरीब आदमी को क्या चाहिए? पुअर पीपल एक्चुअली वांट फूड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द रिच पीपल वांट्स गुड्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज। So where should we use our resources? For the production of food, shelter, clothing, or for the production of car, AC? कहाँ लगाएं resources? आप कहेंगे कि जी जो गरीब लोग हैं पहले उनको खाना मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन the poor people actually do not have economic resources, so they cannot actually convert their need into demand. So the need should be converted into demand, and it will be converted into demand when they will go to the market and they will offer their money to purchase the goods, but they are not having money. तो ये प्रॉब्लम है कि जिनके लिए आप सोच रहे हैं बनाए उनके पास कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। तो जो सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्हें भी तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए ना, लेकिन वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनके पास है नहीं। और जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज है मार्केट से परचेज करने के लिए, जो डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, वो डिमांड फूड की नहीं कर रहे हैं। अब जो गरीब आदमी है, आप कहेंगे जी फूड तो सबको चाहिए। गरीब आदमी के फूड में और अमीर आदमी के फूड में अंतर है। गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी चाहिए समय पर 2 वक्त की, उसको ठीक से सब्जी मिल जाए तो काफ़ी है, अच्छा है। लेकिन अमीर आदमी को क्या चाहिए? आप देख लीजिए जिस तरह से इनकम लेवल इंक्रीज करता है तो फिर आदमी रोटी कम खाता है, फिर क्या आता है वहाँ पर पिज्ज़ा आएगा, फिर वहाँ पर डोसा आएगा, यानी कि फिर आप सर्विस सेक्टर से जो प्रोड्यूस हुई चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो उसके फूड में एक पुअर सेक्शन की फूड की डिमांड में और रिच सेक्शन की फूड की डिमांड में बहुत डिफरेंस है। तो आप पिज्जा बनाने में अपने रिसोर्सेज लगाएंगे या रोटी बनाने में, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में ये प्रॉब्लम है इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन कि रिच लोगों के लिए गुड्स ऑफ कंफर्ट्स के प्रोडक्शन में हम रिसोर्सेज लगाएं, या पुअर जो पीपल हैं उनके लिए जो बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स चाहिए, जिनको हम कहते हैं गुड्स ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता की वस्तुएं, उसको प्रोडक्शन करने के लिए अपने रिसोर्सेज लगाएं। This is the problem of which is called the problem of individual
distribution. Now is it clear to all of you? Good, good. So the other part of this problem is problem of functional distribution. And what is functional distribution? Functional distribution is we produce goods and services with the help of resources, and these resources are called factors of production in the economy. कि factors of production क्या है हमारे पास, और जो factors हैं जिनको हम याद रखिएगा inputs भी कहते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में चीजें यूज होती हैं उनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स कहते हैं। और जो हमारा प्रोड्यूस होकर के चीजें बनती हैं, फॉर एग्जांपल कि हम शर्ट्स बना रहे हैं, टी शर्ट बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, कूलर बना रहे हैं, ये सब क्या है हमारा, ये हमारा आउटपुट है जो बन करके निकल रहा है फैक्ट्री से। और जिन चीज़ों का यूज़ हो रहा है इसमें, वो क्या हो रहा है, लेबर का यूज़ हो रहा है, मशीन का यूज़ हो रहा है, रॉ मटेरियल का यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल यदि हमें ये चाहिए तो इसके लिए कॉटन चाहिए, अगर हमें मान लीजिए चेयर बनानी है प्लास्टिक चाहिए या आयरन चाहिए कुछ भी, तो ऐसे ही ये सारी चीज़ों के लिए सब जो यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मशीन चलाने के लिए, वाटर चाहिए, ये सब क्या है, ये इनपुट्स हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक प्राइमरी फैक्टर्स या प्राइमरी इनपुट्स, और दूसरे जो हो गए वो हो गए सेकेंडरी इनपुट्स। अब जो प्राइमरी फैक्टर्स या प्राइमरी इनपुट्स हैं वो 4 हैं आपके। 1 लेबर, 2 लैंड, 3 कैपिटल, and D entrepreneur. Yeah, entrepreneurship. So land, labor, capital, entrepreneurship. So these are the 4 important factors of production, and these are called primary factors or primary inputs. On the other side, except these 4, whatever is used in the production process is called secondary inputs or secondary factors of production. For example, electricity, water, raw material. So all these things which are required other than these 4 factors, anything that comes into secondary factor inputs. इसके अलावा जो भी इन 4 के अलावा जो भी यूज होगा हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो सब सेकेंडरी कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्या, प्रॉब्लम ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसको जो हमारा सेकंड पार्ट है यानी कि सेकेंडरी इनपुट्स है, इसको भी छोड़ दें इसको समझने के लिए कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि ये 4 फैक्टर्स सबसे पहले जरूरत होती है जिनको प्राइमरी फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। In the absence of any one of these 4, we cannot produce anything. Nothing can be produced if any one out of these 4 is absent. यदि इनमें से एक भी कम हो जाए तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता। Suppose we have started a coaching center, okay? Then, and we have started this coaching center from our own capital at our campus. So, do you think that all 4 factors are there? क्या चारों फैक्टर वहां पर होंगे यदि हम अपने ही घर पे कोई कोचिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं तो? किस रूप में होंगे चारों फैक्टर्स? वहां पर भी ये चारों फैक्टर्स होंगे। लेबर हम खुद कर रहे हैं क्योंकि हम खुद पढ़ा रहे हैं वहां पर। लैंड क्योंकि हमारा अपना घर है तो लैंडलॉर्ड भी हम है, लेबर भी हम लगाने वाले हैं। और कैपिटल जो वहां पर जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो चेयर्स हैं, कैमरा है, बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, एवरीथिंग वी आर परचेजिंग ऑल दीज थिंग्स। सो द कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसने किया? वो भी हमने किया। और लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप।
यानी ये सब कुछ आइडिया किसका है, और वहां पर जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किसको मिलेगा, तो वो हमें ही मिलेगा। अगर प्रॉफिट हुआ वो भी हमारा है, और सारा इन्वेस्टमेंट किया, कोई बच्चा नहीं है, हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो जो सारा एक्सपेंसेस किए हमने वो हमें रिटर्न नहीं दे पाए, तो वो लॉस भी हमारा है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारी है। तो यानी चारों फैक्टर वहां पर है। वो बात अलग है कि इन चारों फैक्टर को लगाने वाला जो पर्सन है वो एक ही है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन चारों के चारों फैक्टर होने जरूरी हैं प्रोडक्शन के लिए, इसलिए ये प्राइमरी फैक्टर्स हैं। अब ये जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं, इसमें लेबर को क्या रिवार्ड मिलता है, जिन्होंने काम किया, मेहनत की, उनको क्या मिलना चाहिए, वेजेस और सैलरीज, कुछ भी कह सकते हैं आप। जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं जनरली उनके लिए सैलरीज वर्ड यूज किया जाता है, जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं उनके लिए लेबर वर्ड का ज्यादा यूज होता है, इसलिए उसके वेजेस यूज होता है। ठीक है, तो लैंड, जिन्होंने अपना लैंड दिया है, जमीन दी है, कुछ भी आपको शॉप दी है आपको कोई, या कोई भी एरिया दिया है, गोडाउन दिया है, कोई भी कुछ भी दिया है, उनको क्या चाहिए बदले में, एक सर्टेन टाइम के बाद दे नीड व्हाट, देयर रिटर्न, एंड देयर रिटर्न इज कॉल्ड रेंट। उनका जो रिटर्न है वो लैंड को मिलेगा रेंट। जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी आमिर खान की, आजकल बड़ी चर्चा में चल रही है, एक मूवी आने वाली है ना, तो बड़ा एक चल रहा है सोशल मीडिया पर, बायकॉट लाल सिंह चड्ढा। तो वाई बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, उनकी एक फिल्म आई थी जो उनके फेवर में जो लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि आमिर खान इज अ गुड एक्टर एंड हिज पास्ट मूवी लगान, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, वो ऑस्कर के लिए भी गई थी, तो ऐसे व्यक्ति की हमें नहीं बायकॉट करना चाहिए। दूसरी तरफ जो बायकॉट करने के लिए लोग कह रहे हैं उनके अलग अपने रीजंस हैं, वो भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो कि क्यों आमिर खान के ऊपर ये सब एलिगेशंस लग रहे हैं, तो उनकी एक लगान फिल्म थी जिसमें दिखाते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने जो लगान लगाया था इंडियन फार्मर्स पर, जब वो माफ़ कराने के लिए जाते हैं तो ब्रिटिशर्स कहते हैं हमारे साथ क्रिकेट खेलो, अगर जीत गए तो हम आपका लगान माफ़ कर दें। तो वो जो लगान है, वो लगान ये रेंट है। तो रेंट, लैंड लॉर्ड को क्या चाहिए, रेंट चाहिए। इसी तरह से कैपिटल, जिसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, अपना पैसा दिया है सब चीज़ों के लिए, मशीन्स को परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, ये सब काम करने के लिए जिन्होंने अपने कैपिटल को लगाया है, पूंजी को लगाया है, उनको बदले में क्या चाहिए, इंटरेस्ट। तो आप बैंक से अगर पैसा लेते हैं कि जी ये हमारा प्रोजेक्ट है और हमें इसमें बिजनेस में पैसा लगाना, तो बैंक कहेगा ठीक है आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन हम इतना इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे, तो उसे इंटरेस्ट चाहिए। और लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका सारा आइडिया है, जो प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लास्ट में जो कुछ है उसको मिलेगा प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी उसको बियर करना पड़ सकता है। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स एंड दीज आर द रिवार्ड्स ऑफ दीज 4 फैक्टर्स। अब जो कुछ भी आपने प्रोडक्शन किया है वो इन 4 फैक्टर्स A, B, C और D ने मिलकर किया है। अब ये ABCD ने जो भी ये सब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब ने मिलकर के जो प्रोडक्शन किया, मान लीजिए ये वो, इस प्रोडक्शन में इन चारों फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इन चारों फैक्टर्स को इसमें से रिवार्ड चाहिए, और ये रिवार्ड इस फॉर्म में चाहिए। तो हम हाउ कैन वी डिसाइड हाउ मच रिवार्ड फ्रॉम दिस आउटपुट should be given as wages or salaries in the form of wages and salaries to labor, कि भाई कितना हम सैलरीज या वेजेस के लिए हम रखें, इसमें से कितना दिया जाए सैलरीज और वेजेस। जिसने अपना लैंड दिया है उसको रेंट चाहिए, तो बट हाउ मच रेंट शुड बी गिवन, रेंट का हिस्सा कितना होना चाहिए उसमें, और इसी तरह से जिसने कैपिटल दी है उसका कितना रहना चाहिए इंटरेस्ट के रूप में, और लास्ट वन कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये जो 4 रिवार्ड्स हैं, ये कैसे तय करें कि कितना कितना होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ कैन वी डिसाइड द रिवार्ड्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द आउटपुट, कैसे करेंगे डिसाइड, ये अपने आप में प्रॉब्लम है। सो इज इट क्लियर? सो अगेन now we repeat all these 3 problems. First was what to produce and in what quantity. What to produce, capital goods produce करें या consumer goods produce करें, करनी दोनों ही है, तो कितनी कितनी क्वांटिटी रहेगी, capital goods की कितनी रहेगी और consumer goods की कितनी क्वांटिटी रहेगी। सेकंड प्रॉब्लम हमारी थी how to produce। how to produce जो प्रॉब्लम थी वो choice of technique की प्रॉब्लम थी, और टेक्निक्स हमारे पास 2 हैं, और वो दोनों टेक्निक्स क्या हैं, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड कैपिटल इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव में किसका यूज करें,
और थर्ड प्रॉब्लम जो है वो अपने आप में क्या है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, जिसको हमने दो भाग में डिवाइड किया, प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन में ये था कि रिच के लिए प्रोडक्शन करें गुड्स ऑफ कंफर्ट या लग्जरीज का, जैसे कार या एसी का, या पुअर के लिए रिसोर्सेज लगाएं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हाउसिंग, ये सब जो भी है इनको प्रोडक्शन करने के लिए लगाएं। और उसका बी पार्ट था प्रॉब्लम ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हमारे फोर फैक्टर्स हैं, प्राइमरी फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके लिए सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कि उस प्रोडक्शन में से कितना शेयर दिया जाएगा लैंड को एज रेंट, लेबर को एज वेजेस और कैपिटल को एज इंटरेस्ट, एंड लास्ट वन एंटरप्रेन्योर को कैसे प्रॉफिट कितना मिलेगा। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स, पार्ट्स ऑफ द मेन सेंट्रल प्रॉब्लम, एंड द मेन सेंट्रल प्रॉब्लम वाज, क्या थी मेन सेंट्रल प्रॉब्लम बताइए, किसको याद है, लास्ट में आता थे। पहला जो पॉइंट था वो क्या था, जी, allocation of resources. So how to allocate these scarce resources perfectly, कैसे हम सही ढंग से इसको लगाएं रिसोर्सेज को, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड एनी वेस्टेज ऑफ दीज स्केर्स रिसोर्सेज, बहुत कम है इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते वेस्टेज। मम्मी ने 200 रुपये दिए कि जाओ लोग स्कूल चले जाओ, पॉकेट मनी। अब 200 रुपये में क्या करना है, 200 रुपये में दोस्त का बर्थडे है, फ्रेंड का, उसको गिफ्ट भी देना है। 200 रुपये में एक नई मूवी आई है वो भी देखनी है। 200 रुपये में ट्यूशन लगाया नया, एक बुक आ रही है इकोनॉमिक्स की वो भी लेनी है। 200 रुपये में आज कहीं बाहर जाकर कुछ खाने का मन है तो वो भी खाना है। अब 200 रुपीज़ में ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती 200 में, कोई एक हो सकती है, सारी नहीं हो सकती, क्योंकि लिमिटेड मनी है हमारे पास। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी कर लें। हम चले गए मूवी देखने और बाद में देखकर लगा अरे क्या थर्ड क्लास मूवी थी, इससे बढ़िया होता दोस्त को गिफ्ट देते, उसने भी दिया था हमारे बर्थडे, कल को हमारा बर्थडे फिर आएगा, हम नहीं देंगे तो वो हमें कैसे देंगे। तो मन में कैलकुलेशन ये सारी चलेंगी, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर आपने मान लीजिए कि भाई दोस्त को बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया, 2 दिन बाद लड़ाई हो गई, बेकार ही इसको गिफ्ट दिया, इसको देने से बढ़िया था कि कुछ खाना खा लेते। तो यू हैव टू थिंक व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब वो 200 रुपये आप लेकर चले गए और कहा दुकान पे पहुंचे गिफ्ट लेने के लिए, देखा तो 200 रुपये कहीं गिर चुके, चारों चीजें ही रह गई। तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बेस्ट यूज है, बिकॉज वेस्टेज कैन नॉट बी अफोर्ड, नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेड। तो आज यहां तक आपका करते हैं, कोई डाउट है तो पूछिए आप जी। एनी डाउट? ओके, सो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम अगली क्लास में यहीं से ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं इसी से कंटिन्यू करेंगे।